السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کہاں بزی رہ رہے، کبھی یاد بھی نہیں کرتے آپ؟ ارے وہ میں مسجد میں تھا، میں نے فون لگایا تھا، آپ نے اٹھایا نہیں ابھی پہلے۔ آپ جس ٹائم کرتے تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کی مغرب بعد حاضری ہو رہی ہے، اچھا تو پڑھنے جانا پڑتا ہے۔ پھر آپ فرصت ہوا کیا نہیں ہوئے ابھی؟ ہاں ابھی تو میں فرصت میں ہو گیا، آدھا گھنٹہ کی فرصت ہے ہم لوگ کی۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ مدد فرما رب العالمین فرمائے۔ اور صاحب بتاؤ کیا؟ سرکار عرض یہ کرنی کہ آپ کی ویڈیو میں آپ جو ویڈیو بھیجے ہیں، اب سے عرض یہ ہے، مطلب یہ گزارش سمجھ لیجیے، آپ تو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، بزرگ کو، پھر آپ کا اعتراض ایسا کیوں ہے؟ مطلب اشکال ہوتے ہیں نا، جو طالب علموں کے اشکال ہوتے ہیں اپنے استادوں سے پوچھتے ہیں، اشکالات دور کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، جب حضور کا فرمان ہے 73 فرقے ہوں گے، تو یہ امت اجابت میں ہوں گے یا امت دعوت میں ہوں گے؟ یہ آپ ہی بتا سکتے ہو، کیونکہ آپ محقق ہی ہو۔ نہیں، میں محققی کر رہے ہو تو آپ محقق آدمی بتا سکتا ہے۔ اب میں محقق کیا کہتے ہیں، دعا کریے میں محقق بن جاؤں گا۔ ابھی تو میں محقق نہیں ہوں، انشاءاللہ میں یہ جو آپ جو بولے اب بھی جو ورڈ آپ بولے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کا میں کل جواب دے دوں گا۔ لیکن میرا یہ اعتراض ہے آپ سے کہ آپ نے اس ویڈیو میں آپ نے بار بار جو آپ جب یہ بول رہے تھے کہ امام مکہ، امام کعبہ، جو بھی آپ نے بولا، تو اس میں بار بار آپ ماشاء اللہ رب العالمین نعوذ باللہ من ذالک یہ پڑھ رہے تھے۔ یہ پڑھنے کا وجہ کیا ہے؟ آپ کی وجہ کیا ہے؟ کیا پڑھ رہے تھے آپ نے لا حول پڑھ رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک پڑھ رہے تھے، ان کو کافر بول کر بولے کہ ان کو کافر بولتے، بریلی والے۔ کیا بریلی سے خارج ہیں آپ؟ مطلب یہ ہے کہ کسی کو بغیر تحقیق کے کافر نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے یزید کو کب کافر کہا فاضل بریلوی نے؟ میری بات سنیے، جب یزید کے بارے میں اتنا احتیاط کیا انہوں نے، نرم گوشہ کیا، نرم گوشہ ہی تو رکھا فاضل بریلوی نے۔ یزید کے بارے میں کتنی نرمی برتی، کتنی نرمی اختیار کی کہ یزید کو کہا کہ ہم کافر نہیں کہیں گے۔ کتنا اچھا نظریہ ان کا، میری بات سنیے، کتنا اونچا نظریہ تھا۔ اور ایک دم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کو آپ کافر کہتے ہو، صحابہ کے ماننے والوں کو کافر کہتے ہو۔ یہ میرا نظریہ رہتا ہے۔ میری بات سنیے، صحابہ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ دیکھو اس میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب تو پھر وہی تو آپ پہلو نکال لو نا۔ صحابہ کے ماننے والا اگر نبی کا گستاخ ہوگا تو ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ وہ تو جو کوئی بھی مسلمان نہیں مانے گا جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا۔ آپ صحابہ قید کیوں لگا رہے ہیں؟ نہیں، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اسے کوئی بھی مسلمان نہیں مانے گا۔ اگر اس کو صحیح مانے گا وہ بھی گستاخ میں شامل ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر لڑکی کسی نے دیوبندی کو لڑکی دے دی، اپنی لڑکی، بالکل، وہ 4 بچے ہو گئے، 4 لڑکیاں ہو گئی، بعد میں وہ سنی بن گیا، بریلوی بن گیا، تو اس کی اولاد کو حلالی مانے یا حرام؟ دیکھیے میری بات سنیں پہلے، اس کے لیے قاعدہ الگ ہے۔ لڑکے کو پوچھا کہ لڑکے کس حالت میں تھا؟ نہیں، دیوبندی تھا، پکا دیوبندی تھا۔ جب پیدا ہوئی 4 لڑکا لڑکی تو دیوبندی تھا، پکا دیوبندی تھا۔ سانگی صاحب کو مانتا تھا، نانگی صاحب کو، بعد میں وہ سنی بنا۔ بالکل، تو اب وہی والی بات ہو جائیں گی، وہ جس ٹائم تھا تو اس ٹائم اسلام سے خارج تھا عقائد کے اعتبار سے۔ تو پھر جب عقائد جب خراب ہے تو نکاح تو پہلے ہوئی نہیں، نکاح نہیں ہوئی، اس سے اگر یہ ہوا جو ہوتا ہے ایک دوسرے کا ملنا، تو بالکل جمع میں نہیں کہلائے گا بلکہ وہ زنا میں کہلائے گا۔ اچھا، زنا کی اولاد کہلائے گی وہ؟ بالکل۔ اور جب سنی بن گیا، جب بھی سنی بن گیا، جب بھی زنا کی اولاد کہلائے گی اس کی۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ جیسے وہ سنی بن گیا 10 سال کے بعد 4 لڑکا لڑکی پیدا ہو گئے تو وہ اولاد زنا والی کہلائے گی۔ بالکل۔ اچھا، جیسے سنی تھا، 4 لڑکا لڑکی ہو گئے سنی کے، پھر وہ دیوبندی بن گیا۔ ہاں، تو بن گیا یہ الگ بات ہے، بنے گا تو وہ نہیں ہوگا، اگر اس کے عقائد پر اگر وہ مطلع ہو جائے گا تب وہ ہوگا۔ نہیں، جیسے بہت سے سنی دیوبندی ہو جاتے ہیں نا، تو ہو جاتے ہیں، تو مت سنیے، اس کو ہم حرامی نہیں کہتے۔ کبھی سنا ہے کہ رشتے داری دیوبندیوں میں، ان کی بہن دیوبندیوں میں ہے، کہیں پر اہل حدیث میں دیوبندیوں میں، صحیح بات ہے؟ نہیں پتا مجھے اس کے بارے میں۔ مفتی شریف اللہ امجدی صاحب کی تو ہے، مجھے تو نہیں پتا اس کے بارے میں۔ ہو سکتا، دیکھیے اب یہ کوئی بات نہیں ہوئی بھائی یار، میں بول رہا ہوں بابا جان آپ سے، میں یہ پوچھ رہا ہوں، یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے بھائی۔ اب ہو سکتا ہے، میں کہاں بولا نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح نہیں، آپ وہیں رہتے ہو نا تو آپ کو سب معلوم ہوگا۔ نہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ سنی تھا، دیوبندی کٹر بن گیا تو وہ اس کی جو اولاد ہوئی 6 اولاد، وہ حلالی مانی جائے کہ اب حرامی مانی جائے؟
बिल्कुल हराम नहीं, हलाली नहीं माना जाएगा, अकायद ही नहीं सही है। और जब उससे किया जाएगा अकायद तो पहले सही थे, उसमें 4 औलाद हो गई, इसकी लड़का हो गया, 2 लड़के हो गए, 2 लड़की, बाद में देवबंदी बन गया वो। बाद में देखिए, पहले बात सुनिए, हरामी का ताल्लुक किससे है? नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो देवबंदी बन गया, मेरी बात सुनिए ना। अरे तो मेरी बात सुनिए ना, हमने जमा किया, थोड़ी देर मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर जैद की अकायद खराब है, जैद ने हिंदा से हम बिस्तरी किया, तो ये हम बिस्तरी मतलब जो किया उसकी अकायद तो खराब है जैद की, और हिंदा भले से उसके अकायद सही है, किया तो किससे ना, और उससे जो औलाद पैदा होगा ये तो जैद की तरफ निस्बत की जाएगी। बहुत ऊंचे दर्जे की बात कही आपने, जैद की तरफ निस्बत की जाएगी ना कि उसकी तरफ। अच्छा, जैसे किसी ने देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ ली, बाद में मालूम है देवबंदी था सुलह कुल्ली यानी सबको मुसलमान मानने वाला, देवबंदियों को, बरेलियों को जी। अब उसके पीछे नमाज पढ़ा, बाद में बहाना बना रहा है कि मुझे मालूम नहीं था, तो वो नमाजें दोहराना उसे वाजिब है या नहीं? बिल्कुल दोहराना पड़ेगी, बिल्कुल। और निकाह वगैरह तो नहीं करना पड़ेगा? निकाह के बारे में मुझे कंफर्म नहीं पता। चलो तहकीक कर लेना, नमाजें तो दोहराना पड़ेंगी। तो निकाह, हाँ मतलब क्या, बिल्कुल। और अगर जानबूझ के वो ऐसा कर रहा है, मक्कारी कर रहा है, सब कुछ जानते हुए बार बार वहीं जा रहा है, सुलह कुल्लियों की नमाजें पढ़ रहा है, तो मेरी बात सुनिए ना, अगर शायद ये मुझे थोड़ा इसमें डाउट लगा कि उसको निकाह भी करना पड़ेगा, लेकिन इसमें न्यू मेहर नहीं लगा। नहीं, निकाह करना पड़ेगा, निकाह भी करना पड़ेगा, एहतियात यही है फतवा रज़िया के हिसाब से आप देखना। तो मेरी बात सुनिए, आपने फतवा रज़िया का दलील दे दिया आपने, तो फिर आदत की बात आप क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं मानता हूँ ना, हर बात नहीं मानता, जैसे अल्लाह रसूल की हर बात तो अल्लाह रसूल की मानी जाएगी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, हज़रत को अपन नबी की तरह से नहीं मानेंगे, बस एक आलिम के हिस्से से मानते हैं। किसी की तरह, किस हिस्से से नहीं मानेंगे? अल्लाह रसूल की तरह से नहीं मानेंगे उनको, कि आला पे लाखों सलाम पड़े, नबी के साथ में आला हज़रत पे लाखों सलाम पड़े। आपको किसने पूरा क्या बोले, क्या फिर से? जैसे आला हज़रत पे लाखों सलाम नहीं पड़ा जाएगा अल्लाह के रसूल। क्यों नहीं पढ़ सकते? सहाबा किराम फिर अलग हो जाएंगे, अहले बैत अलग हो जाएंगे, तो आला हज़रत का मतलब सहाबा से बड़ा हो जाएगा, बड़ा मनवा लिया जाएगा, बड़ा कर दिया जाएगा। ये कोई बात हुई यार? मैं बोलो बड़ा तो नहीं होगा, मर्तबा तो कुछ भी नहीं होगा उनका ऐसे बड़ा, लेकिन वो है कि बकवास हो जाएगी कि भाई साहबा को एक साइड करके अब हालत लाखों सलाम भेज रहा हूँ नबी के साथ में। कौन बोले? नहीं, आजकल यही तरीका अपना। अरे भाई यार, ये अब कहाँ ये कोई दलील हुई यार? मैंने पढ़ दिया, क्या कहते हैं डाल दी कलमे में अजमत मुस्तफा सैयदी आला पे लाखों सलाम, तो ये मतलब ये कोई एतराज हुई है? नहीं, ये भी सही नहीं है, इसलिए कि नबी के साथ में ये तरीका अपनाना। मेरी बात सुन लो एक मिनट। इस पर पाबंदी लगानी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में कि भाई आप नबी पर सलाम भेजो, बस नबी के साथ में किसी पर सलाम नहीं भेजोगे। जब आप इमाम हुसैन पे नहीं भेजा नबी के साथ, हजरत अली पे नहीं भेजा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, तो आप इसका मतलब हजरत अबू बकर, हजरत उमर इमाम हुसैन से बड़ा इनको मनवाना चाहते हो? फजल बरेलवी को लोग बागों में एक शक पैदा हो जाएगा और नई जनरेशन गुमराह हो जाएगी, लोग भी समझेंगे यार सही तो बात है, आला हजरत के ऊपर लाखों सलाम भेजने का क्या मतलब है? क्या किसी ने खिदमत ही नहीं की इस्लाम की? क्या हजरत अली ने इस्लाम की खिदमत नहीं की? क्या हजरत अबू बकर ने खिदमत नहीं की? क्या हजरत उमर ने नहीं की? क्या इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-इरशादी ने नहीं की? क्या किसी ने खिदमत ही नहीं की इस्लाम की? तो मतलब कि वही वाली बात हो जाएगी कि आला हजरत अगर नहीं लिखे है तो बनी उस लायक वो नहीं है। नहीं, आला हजरत ने खिदमत की, क्या इसका मतलब ये भी हो गया कि आला हजरत ने खिदमत की, गरीब नवाज ने नहीं की? क्या आपने पूरी हटाई के बच्चे पढ़ दिया? इस्लामी वालों ने एक बोर्ड लगाया है कोटा राजस्थान में रजा मस्जिद के ऊपर, सिर्फ आला हजरत का नाम लिखा है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का भी नाम नहीं लिखा, इमाम हुसैन का भी नहीं लिखा, हजरत अबू बकर का भी नहीं लिखा। आप जाके देख लो रजा मस्जिद स्टेशन पे। ठीक है, मैं बता देता हूं। लेकिन वहाँ के लोग एतराज ही नहीं कर रहे कि भाई आप लोग अपना रास्ता नापो, क्योंकि इस्लाम गरीब नवाज ने फैलाया, अल्लाह ने नहीं फैलाया। अल्लाह आलिम से बस, आलिम तो हजारों लाखों हुए। मेरी बात सुनिए ना, हम लोग अल्लाह का नाम इसलिए लिखते हैं कि बाज आदमी ऐसे होते हैं जो हुजूर गरीब नवाज को ही मानते हैं। बात सुन रहे मिलिए? हुजूर मुफ्ती क्या कहते हैं, हुजूर गरीब नवाज को मानते हैं, हुजूर गौसे आजम को भी मानते हैं, लेकिन क्या मामला है कि क्या कहते हैं अबू तालिब को क्या कहते हैं मुसलमान मानते हैं। क्या गौसे आजम ने मुसलमानों को माना है? क्या गरीब नवाज ने उसको कह रहा हूं माना है नहीं माना है? ये बात नहीं। मैं जब बोल रहा हूँ मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को जमाने के आलिमों ने कुफ्र का फतवा दिया था कि नहीं 11 साल पर, लेकिन फाजिल बरेलवी क्यों वली माना? खानवी साहब भी वली मानते हैं, फाजिल बरेलवी वली मानते हैं। किनको यार? हजरत हुसैन मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को क्यों वली मानते? जब उनके ऊपर कुफ्र का फतवा था तो फिर तावीलें क्यों करते हो? ये अब अजीब बात पर मैं आप कहाँ ले जाते? मेरी बात गुलाम मोहम्मद नागपुरी का ऊपर कुफ्र का फतवा मुहद्दिस कबीर का है, तो फिर इनको काफिर क्यों नहीं कहते? अरे हुजूर मुहद्दिस कबीर का नहीं है ये, मैं बताया ना, हुजूर मुफ्ती आसिम हिंद से आ रहा है। किसके ऊपर? वही आप बोला हूँ, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर। हाँ,
नहीं उनका नहीं है, मुफ्ती आजम हिंद का कैसे होगा, वो तो मुफ्ती आजम की खलीफा थे। ये आओ मुझे ये महाराष्ट्र नागपुर के बता रहे थे जो सबसे बड़े मुफ्ती थे। चल ठीक है, सबसे बड़े चलिए, मुफ्ती आजम से तो बड़े मुफ्ती नहीं थे ना। अरे मुफ्ती आजम महाराष्ट्र थे, अजरिया से बड़े थे। ठीक है, तो मुफ्ती आजम उम्र में भी वैसे भी इल्म में भी ये समझ मुफ्ती लो आजम हिंद है, ये मुफ्ती आजम महाराष्ट्र है। अल्लाह जाने, लेकिन थे बहुत बड़े आदमी। हाँ तो बात हम क्या बोले, एक होता है कि मुफ्ती आजम महाराष्ट्र, एक होता है मुफ्ती आजम हिंद, और हिंदुस्तान में महाराष्ट्र आ जाता है, समझे। हाँ तो वो मुफ्ती आजम महाराष्ट्र थे। ठीक है, तो मैं बोल दिया। तो इनकी वफात कब हुई है? इनकी हुई है 30 साल पहले। 30 साल पहले, चलो ठीक है, तो ये इसी दौर का मामला होगा, उस दौर का 25 साल ही हुए लगभग। चलो ठीक है, मेरा आपने सबको मान, आप बोले कि मैं हालात की हर बात को नहीं मानता हूँ, और मैं आपको इसलिए जवाब देता हूँ कि हम लोग कहीं भी लिखते हैं मसले के आला हजरत लिखते हैं, इसका इसलिए ताल्लुक है ना कि आज आपने ये भी लिखा करो मसला के इमाम गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह, ताकि फर्क हो जाए कि वहाबी लोग मसला के इमाम गरीब नवाज नहीं कहते, सुन्नी कहते हैं। इसमें फर्क हो जाए कि वहाबी लोग भी मसला के इमाम आजम तो मानते हैं, मसला के इमाम गरीब नवाज जब हम कह देंगे तो फर्क हो जाएगा कि वो वहाबी हैं ये सुन्नी है। अरे तो बात क्योंकि सुन्नी मसला के गरीब नवाज नहीं कहते, वो वहाबी। आपने इस पे एतराज किया, आपने इस पे एतराज किया है। इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहते, सुन्नी कहते इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम, इसलिए अलैहिस्सलाम कह देना चाहिए कि वहाबी भी रज़ी अल्लाह अन्हु कहता है, सुन्नी भी। तो फर्क क्या है? ये कोई फर्क, आप ये फर्क मत निकालो, आप ये फर्क मत निकालो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। अब मैं ये बता रहा हूँ कि हम आला हज़रत का नाम इसलिए लिखते हैं, मैं बार बार आपको इसीलिए कह रहा हूँ। माशाल्लाह आपका ज़हन मुहक्किकाना मुफक्किराना दूर है। आप ये फालतू की मुबालगा करने लगे, बात तो सुन लीजिए। आपने जो कुल्ली के पीछे होता है नमाज दोहराना पड़ेगी, तो ये मुफ्ती बज़ आलम सैयद सलामा इलाहाबाद गए थे। मैं उसको छोड़िए ना, मैं जिम्मेदार नहीं, तो अब आप हक बात कहना पड़ेगी, इनको नमाजें दोहराना पड़ेंगी और निकाह भी करना पड़ेगा सैयद सलामा जो गए, क्योंकि पब्लिक क्यों कराते हैं निकाह? तो आप चल ठीक है, पब्लिक अगर देवबंदी के पीछे नमाज पढ़े तो निकाह करवाते हैं साहब। आप क्या कहते हैं, ये अशरफ अली थानवी को आप काफिर क्यों नहीं मानते? नहीं, ये मुफ्ती सैयद, ये मुफ्ती बज़ आलम साहब निकाह क्यों नहीं करते? जब आप मुफ्ती बज़ आलम पर फतवा क्यों नहीं लगाते? कहो कि हाँ उसे निकाह पढ़ना पड़ेगा। फतवा लगाएं, हम आपके फतवा लगाएं। नहीं, मुहद्दिस से कभी नहीं लगा दिया फतवा। मैं आपसे फतवा लगाऊं? नहीं, आप मुफ्ती बज़ आलम पर फतवा लगाओगे, हाँ उसे निकाह करना पड़ेगा, दोबारा से ईमान लाना पड़ेगा। मैं वो देखिए उनका मैं तो पूरी तरह से हक बात को कट्टर सुन्नी बनो। अरे यार वो तो आप कट्टर सुन्नी हो, मैं तो हूँ, लेकिन आप भी कट्टर सुन्नी बनो। मैं कैसे मान जब आप यानी गुस्ताखी रसूल जब मुफ्ती बज़ आलम का नाम आता है तो फिर आप ढीले टोले क्यों हो जाते हो? इलियास काजी का नाम आता है तो ढीले, इलियास ने अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाया, लब्बे की अफ्तार के नारे लगवाए। ये मतलब घुमाओ मत, मैं आपसे सवाल क्या किया? उसने अपना मिलादनामा पढ़वाया, जामे नहीं मुरादाबाद से कुफ्र का फतवा, तो छुपाते क्यों? कुफ्र का फतवा जब जामे नहीं से लगा है, किसने लगाया? काजी पर लगाया कि हम ईद क्यों ना मना रमजान की बात। सुनो ना, किसने जालिम बादशाह से तशबीह दी है। अरे बात सुन, किसने लगाया? वो मुफ्ती आजम मुरादाबाद ने लगाया है। मुफ्ती आजम मुरादाबाद का नाम क्या है? मुफ्ती अय्यूब खान साहब नहीं है मुझे। तो मुफ्ती आजम आप बोल दिए, ये कब कितने साल पहले की बात है? ये है लगभग, ये मुफ्ती शमशाद साहब ने लिया था, बदायूं वालों ने 15-20 साल के आसपास। क्या उस टाइम हुजूर ताउशरिया नहीं थे? हुजूर ताउशरिया से बड़े है ना? तो हुजूर ताउशरिया ने कुछ क्यों नहीं बोला? अरे उन्होंने ये बोला है कि इन्होंने टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज बताई कि टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज। किसी की बात नहीं मानेंगे। मैंने बोला, अरे इनकी वीडियो मौजूद है, ऑडियो मौजूद है इनकी। मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं। मेरे लिए बस एक मैं हम भी नहीं मानेंगे। तुमने उन्होंने ऐसा लिखा वैसा लिखा किताबों में, हम भी क्यों माने? तो आप जब तुम नहीं माने तो हम भी नहीं मान रहे कि सब फर्जी बना दिए गए मामले। ये बात हुई, आप उसी दौर में बताया कि जब वो आप बोल रहे कि मैंने ये कहा कि इन लोगों ने बताया कि टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। तो ये साजिद गढ़ा वाला हदीस मानता क्यों नहीं है? देवबंदी से चंदा क्यों लेता है? शाही मावा सेंटर से इन पे कुफे का फतवा कहाँ लगा है? अरे शाही मावा सेंटर से चंदा लिया देवबंदी से गढ़ा में है। आपकी नजरिया मुझे सही नहीं लग रही है। अब दोनों तरफ खुला मामला लग रहा है। अरे हजरत ये बताओ, जब इदरीस हज़ारी मियां का मुरीद है पर उनका फतवा नहीं माना तो मुझे सुन्नी क्यों माने? वहाँ भी मानेंगे इदरीस को, साजिद गढ़ा वाले, कोटा वाले को। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब अब उसकी बात तो मान ली कुफे का फतवा लगा दिया, लेकिन उस दौर में पूरे आदमी ने क्या कहते हैं, ये जो होता है ना काज़ी उल कुज़ात फिल हिंद, किसको तस्लीम किया था? काज़ी उल कुज़ात तो देखो साहब, मुफ्ती आज़म हिंद मुरादाबाद को किया था। अब मारेरा वालों ने किसको तस्लीम किया? मारेरा वालों की बात पूरे देखो, मैं न पूरे घोषे की बात कर रहा हूँ, ना क्या कहते हैं मिल्लत हजरत डॉक्टर सैयद अमीन मियां भी इमाम अहले सुन्नत हैं, इमाम अहले सुन्नत हैं आज के दौर में। आप देखो, आपके नजदीक डॉक्टर क्या कहते हैं सैयद अमीन मियां साहब इमाम अहले सुन्नत है, और क्या कहते हैं वकार अहले सुन्नत सैयद हुसैन मियां अहले सुन्नत नहीं, आला हजरत है। और आला हजरत
नाइब आला हजरत हैं हजरत सैयद ये जो सहाबा के सामने तबर्राबाजी करे वो नाइब आला तोबा करवा ली साहब, आपने देखा वो झांसी में तोबा करवा ली उन्होंने, वो नाइब पाला हजरत हो सकता है। अरे बाप रे, वो तोबा कहाँ किया जब सहाबा कर हजरत अमीर मुआविया के सामने गुस्ताखी किया बकायदा कव्वाली के साथ। की शान में गुस्ताखी मत करो, हालात हम उस सैयद को नहीं मानेंगे, हम उस सैयद को नहीं मानेंगे जो सहाबा की गुस्ताखी करे। अरे हम उस सैयद को नहीं मानेंगे। तौबा करवा ली, हालत ने लिखा है कि सैयद गुमराह भी हो जाए तो ताजीम वाजिब है, ताजीम। मैं आपको दलील दूंगा फिर। मुफ्ती अख्तर हुसैन ने ताजीम नहीं की, मसला की हालत का गद्दार ठहरा। मुफ्ती शहजाद ने ताजीम नहीं की, मसला की हालत का गद्दार ठहरा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हम उस सैयद को नहीं मानेंगे। मेरा एक लास्ट यही कहना है, जो सहाबा कराम के अगर शान तबर्राबाजी करता है वो कोई भी हो, और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान तो वराउल वरा है, वो तो भाई क्या कहते हैं मुसलमानों के एक मामा कहलाए जाते हैं। तो उनकी बात अली करमल्लाहु करीम अलैहिस्सलाम की शान, और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान, हजरत इमाम बाकर की शान, हजरत इमाम जाफर की शान। कभी बरेली में जलसा नहीं हुआ इमाम बाकर के नाम का, इमाम जाफर के नाम का, इमाम मूसा काज़िम के नाम का, हजरत खालिद बिन वलीद के नाम का मैंने करवाया। हजरत उमर के नाम का जलसा अंतर राजस्थान में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम का जलसा 12 राजस्थान में करवाया। मैं तो करवा चुका और मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी, जश्न इमाम बाकर भी, जश्न इमाम जाफर भी, जैसे ठीक है, मगर बरेली वाले नहीं करवाएंगे कभी भी। इसलिए सोचे कि अगर इनका इल्म बता दिए तो इन्हें कौन मानेगा जिन्हें हम मनवाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। ठीक है, मेरी बात सुनो, आपने कर दिया कि बरेली वाला नहीं मनाता है, जो मनाएंगे झांसी में कभी नहीं मनाएंगे जश्न इमाम बाकर, इमाम जाफर, खालिद बिन वलीद। सुन लो तो यार, और अगर मना भी लिए तो तकरीर कर ही नहीं पाएंगे, उनकी शान ही नहीं बयान कर पाएंगे। तो आपके पास कितना इल्म के नहीं कर पाएंगे? अरे भाई झांसी के लोगों की रिश्तेदारी देवबंदियों में है, भोपाल में है। वो होने देना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ। लड़कियों की हुई तो उनका निकाह कब हुआ? जैसा अभी आप कह रहे हो निकाह नहीं होगा, आपने खुद कहा निकाह थोड़ी होगा। आप एक टॉपिक पर बात करो ना, पहले मैं आपसे सवाल क्या करूँ, जवाब क्या को लड़की दी तो निकाह हो जाएगा? मैं आपसे सवाल ये मैं निकाह हो जाएगा क्या? नहीं ये बताओ निकाह हो जाएगा? आपसे एक शर्त पे बात करूंगा। ये बताओ देवबंदी को लड़की दी तो निकाह हो जाएगा? इसे सवाल जवाब देने से पहले मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। ये बताओ, जल्दी बताओ, निकाह हो जाएगा? आपके पास टाइम नहीं, फोन रख दूं? मैं झांसी वालों तक पहुंचा दूं, देखो तुम्हारी लड़की भोपाल में निकाह नहीं हो, चलो बुलवाओ। वो जो औलाद हुई वो भी हरामी हुई बरेली के हिसाब से। वो तो मेरे पास बरेली के हिसाब से तो मक्का मदीने वालों के भी निकाह नहीं हो रहे, जितनी भी लड़की हैं वहाँ पर उनके भी निकाह नहीं हुए। और सहाबा किराम की औलाद है उनके भी निकाह नहीं। इमाम हुसैन अस्सलाम की औलाद जो सैयद है उनके भी निकाह नहीं। वहीं इमाम मेहदी अस्सलाम पैदा होंगे। साहब ये तो किसी को मुसलमान नहीं मान रहा है। ये कौन बोला है कि सऊदी में पूरा आदमी काफी है? किसने बोला? मुफ्ती अख्तर हुसैन, मुफ्ती शहजाद आलम से आप पूछ लो। कोई नहीं, ये अकीदा है। आप जाहिल पंथी मत, पूरे अजान का टाइम है, फिर बात करना आप कल।